Good morning, students. I'm going to continue your chapter Enemy. I'm going to continue your chapter Enemy, page number 25, third paragraph. But at this moment, the door opened and she looked out, a dark blue woolen heroine over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure that she was Japanese. In the last video, we have seen that Sadao was just standing at the backyard and he was seeing, और वहाँ वो देख रहा था कि मिनटों में जो धुंध है उनके घर के ऊपर भी छा जाएगी, उन्हें घर के अंदर जाना पड़ेगा और फिर उन्हें अपनी पत्नी हैना और दोनों बच्चों के साथ जो वहाँ पर प्रतीक्षा कर रही थी उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। मगर क्या हुआ, उससे पहले उनकी जो वाइफ है वो खुद बाहर आ गई थी। हम देखते हैं और आगे। His father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by that luck he had found her in the most casual way by chance, literally an American professor's house. The professor and his wife had been kind people anxious to do something for the few foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harry's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble, but he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if were at all possible. The difficult words in the stanza: haori, a part of dress; kimono, a loose white sleeved Japanese robe fascinated at the back with a broad sash; और casual means सामान्य, ordinary; voluble means talkative, बातों नहीं। अब यहाँ पर स्टैंजा में यही सदाओ ये कह रहे हैं, उस समय जब क्या हुआ, जब वो देखा उन्होंने तो दरवाज़ा खुला और वहाँ किमोना के ऊपर गहरे नीले रंग की आरोही पहने उनकी जो वाइफ थी वो दिखी। यह प्रेम से उसके पास आई और वहाँ वो सदाओ खड़े थे और अपने बाजू और उसके बाजू में उन्होंने हाथों में हाथ डालकर वहाँ दोनों खड़े थे और मुस्कुराया, कुछ ना बोली है ना, कुछ ना बोली वहाँ पर। अब क्या हुआ, सदाओ अपनी पास्ट लाइफ सोचने लगे। उन्होंने कहा कि अगर वो हैना सा नहीं मिलते तो पता नहीं वो उनकी शादी किससे होती। और ये सब बता रहे थे कि प्रोफेसर की पत्नी कितनी बातूनी थी और वो गया था और वहाँ उसने हैना से वहाँ पर वो मिले और एक नए विद्यार्थी थी हैना वहाँ पर। अगर वो नहीं जाती तो शायद वो हैना से नहीं मिलते और हैना से उनकी शादी वहाँ नहीं होती। और उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें पूरा पता नहीं चला कि वो जापानीज, जब तक उन्होंने उससे प्रेम करने का नहीं सोचा। Now he left her hand on his arm and was aware of pleasure it gave. Now he felt her hand on his arm and felt the aware of pleasure it gave him. Even though they had been married years enough to have the two children, for they had not married heedlessly in America, they had finished their work at school and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. अब क्या हुआ कि अभी भी उनका प्रेम आपस में इतना ही था जैसे कि अभी न्यूली मैरिड वो लोग हैं, बल्कि अभी उनके दो बच्चे भी थे, फिर भी वो इतने प्यार से ही रहते थे। उनकी शादी जो है वहाँ अमेरिका पे नहीं, अमेरिका में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद जब वो यहाँ आए, उनके पिता ने जब वो पूरा कंफर्म किया, सब पता किया, जब उनके पिता ने उनके पूरे ओल्ड जापानीज़ रीति रिवाजों के साथ उन दोनों की शादी करवाई और अब वो दोनों बहुत ही परफेक्टली हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। It was at the moment that both of them was something back come out of the mist. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung out of the ocean, flung, it seems, to its feet by a beaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then the cruel mist hid him again. अब इतने में उन्होंने क्या देखा, उस मिस्ट में से उन्हें वहाँ पे से कुछ समुद्र में से कुछ बाहर आते हुए दिखा। ऐसे दिखा जैसे कि वहाँ समुद्र के बाहर कुछ फेंका गया हो
और लगा जैसे कि किसी बड़ी लहर ने उसे फेंक दिया हो, और कुछ कदम लड़खड़ाते हुए वहाँ पर चले। धुंध में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था साफ, शरीर की कुछ रेखाएं दिख रही थी, बाजू उसके सिर के ऊपर थे, और घूमती हुई धुंध ने उन्हें पुनः ढक दिया। मतलब उनको जो विजुअल पूरा वहाँ से क्लियर नहीं था। Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. अब हैना जोर से चिल्लाई, कौन है वहाँ? और उन्होंने अपना हाथों में से हाथ छुड़ाया, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सदाओ एंड हैना वरांडा में से रेलिंग के ऊपर से झुकते हुए वो देखने लगे। नाउ दे सॉ हिम अगेन, द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। फिर उन्होंने देखा वो आदमी अपने घुटने और हाथों के बल रेंगते हुए बाहर आ रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाइक दैट, और मुंह के बल वो गिर गया और वहीं लेट गया। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, वॉच्ड फ्रॉम हिज boat. He ran quickly down the steps, and behind him Hannah come here, white sleeveless, flying a mile or two away. On either sides there were fishing villages, but there was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was skipped with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. अब उन्होंने क्या देखा वहाँ जाकर? शायद कोई मछुआरा होगा, ऐसा उनको लगा। वह फटाफट सीढ़ियों से उतरे दोनों, और उसके पीछे हैना भी गई, और खुली वहाँ उन्होंने क्या देखा है दोनों ने कि मील की दूरी पर मछुआरों का गांव है वहाँ पर, और वहाँ तो सन्नाटा है, तट पूरा खाली है, जिस पर खतरनाक पत्थर थे, और शायद इस व्यक्ति को किसी तरह वहाँ से उन चट्टानों में से निकल के बड़ी मुश्किल से आया होगा, और किसी तरह उसने उसमें से निकल के आया होगा, और उस पर अवश्य उसको कुछ बुरा ही कुछ घायल भी हो चुका होगा शायद। वो जब वो उसके पास पहुँचे तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि उसके एक तरफ रेत से ऊपर ढका हुआ था, और वहाँ खून का धब्बा भी था, तो क्लियर था कि ही वॉज वुंडेड दैट. Sadao explained. He made haste to that man, who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sadao stopped Henna at his side and turned the man's head. They saw the face. A white man, Henna whispered. वो घायल था. सदाओ बोला, जल्दी से उसे उस व्यक्ति की ओर गए और रेत से अपना चेहरा उसका हटाया और देखा तो समुद्र का पानी उसके ऊपर, टोपी दिख रही थी उसके सिर पर, है ना, गीले कपड़े थे चिथड़े हुए। और सदाओ ने क्या देखा, जब उसको टर्न किया उस आदमी को तो पता चला कि वो तो एक फॉरेन मैन है, अमेरिकन है, गोरा आदमी है वो। हैना जोर से चिल्लाई। और ये लोग कौन थे? ये लोग जापानीज थे। Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though of many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. अब उन्हें पता चल गया कि हाँ वो वाइट मैन था, उसका कैप गिर गया, उसके बाल दिखे, येलो हेयर्स थे, कई दिनों से शायद उसके बाल बने नहीं होंगे, कटे नहीं होंगे, यंग दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी हो, पीड़ा दी हो, और वो बहुत अनकॉन्शियस था, बिल्कुल उसके बेहोशी की हालत में था, और कुछ भी वहाँ नो नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। वो कुछ उसके साथ किया, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या किया होगा। अनकॉन्शियस था, कुछ बोल नहीं रहा था, बिल्कुल फेंट था, और लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ना उस व्यक्ति को दी है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक